Hello dear student, this is Dr. Monica Patel and welcome back to my YouTube channel that is White Coat Academy. In last lecture we learned regarding the wound healing, the first chapter from the general surgery. Now second, today we also going to learn regarding the one of the interesting topic as well as frequently asked full question in your exam, that is hemorrhage from the general surgery. So let's start together from the introduction. Now, what you mean by the hemorrhage? So, first is the definition. Hemorrhage is the escape of blood from ruptured blood vessel leading to blood loss. That can be internal or external. माने कि हेमरेज किसको बोलेंगे? जब भी ब्लड वेसल रप्चर होगी और उसमें से ब्लड बाहर निकलेगा, एस्केप माने कि निकलेगा. This blood loss is defined as the hemorrhage. It may be internal, it may be external. Why we have to learn this chapter? What is the importance of this chapter? It can be a life-threatening condition. You all know, अगर बहुत ज्यादा bleeding हो जाएगा, hemorrhage हो जाएगा, तो it can be a life-threatening condition. And if not managed promptly, within accurate time, it may affect the multiple organ and leads to multiple organ failure or even the death, right? Hence, this chapter is very much useful in a clinical as well as in your exam point of view. What is the objective? To understand the types, right? The causes, the symptoms and the treatment of the hemorrhage. ऑब्जेक्टिव्स माने कि हमारा एम क्या है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमको अंडरस्टैंड करना है कि किस टाइप का हेमरेज है, उसके कॉजेशन क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, राइट? चलो, second one is the type of hemorrhage. So, hemorrhage broadly classified into the 3 or 4 classification. Amongst them, first one is by the source. First classification is by the source. Now, कहाँ से bleeding हो रहा है उसके according it is again divided into the 3 classification. First one is the arterial, second one is the venous and third one is the capillary. राइट ये देखिए फर्स्ट वन इज द आर्टेरियल. आर्टेरियल ब्लड इज ऑलवेज ब्राइट रेड इन कलर, स्पोर्टिंग हाई प्रेशर ब्लीडिंग especially from the severe artery, right? ये देखिए कैसा कलर होगा, ब्राइट रेड इन कलर एंड ऑलवेज हाई प्रेशर ब्लीडिंग होगा. और ईच सिस्टोल ऑफ हार्ट के साथ साथ ये पंपिंग होगा, राइट? कंटिन्यूसली नहीं लेकिन पंपिंग हमको देखने को मिलेगा, right? Second one is the venous. Venous is the dark red steady flow, right? Arterial में हमने क्या बोला कि जब जब हार्ट का पंपिंग होगा तब तब हमको ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगा. While in a venous, this is the steady type of the blood flow, lower pressure blood flow. For example, deep vein injury. So this one is the venous. Compare कीजिए color. This one is the bright red in a color. This one is the dark red in a color. Third one is the capillary, is the slow oozing, often superficial, right? For example, abrasion. So capillary blood are never flow, right? Capillary blood is never flow, it oozes out. माने कि थोड़ा थोड़ा जम के बाहर आएगा. That one is the slow oozing blood, bright red in a color. So I think you all are clear regarding the first classification. This is according to the source. Second is according to the timing. फर्स्ट वन इज द प्राइमरी, ड्यूरिंग द ऑपरेशन और इंजरी. जैसे हम गिरते हैं, इंजरी होती है और ऑपरेशन होता है, उसी टाइम पे जो ब्लीडिंग होगा उसको हम प्राइमरी हेमरेज बोलेंगे, राइट? सेकेंड वन इज द रिएक्शनरी, occur after the operations or trauma within 24 hours. तो इंजरी होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद 24 आवर्स में जो ब्लीडिंग देखने को मिलेगा उसको हम रिएक्शनरी हेमरेज बोलेंगे, राइट? और मोस्टली विद इन 4 to 6 आवर्स में हमको देखने को मिलेगा. लेकिन ये ब्लीडिंग क्यों होता होगा? बिकॉज ऑफ द डिसलॉजमेंट ऑफ द क्लोट, बिकॉज ऑफ द स्लिपेज ऑफ द लाइगेचर माने कि सुचर मटेरियल, और बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. जनरली क्या होता है, इंजरी होती है, ऑपरेशन होता है, तो बिकॉज ऑफ द एनेस्थेसिया, बिकॉज ऑफ द शॉक, ब्लड प्रेशर में बी लोअर डाउन. But because of the treatment now there is the normalization of the blood pressure. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, especially at the injurious site, there may be a reappearing of the bleeding and because of the vasodilatation as well.
सो द रिएक्शनरी हेमरेज इज अकर विद इन द 24 आवर्स, जिसमें से 4 to 6 आवर्स में सबसे ज्यादा. It is because of the slippage of clot, because of the slippage of the suture material as well. और ऐसा क्यों होता है कभी कभार? Because of the restlessness into the patient, because of the vomiting into the patient, because of the diarrhea into the patient, or we can say the coughing, right? These are the factor or the condition which may lead to produce the reactionary hemorrhage. पेशेंट जबरदस्ती कफिंग करेगा, जोर से कफिंग करेगा, डायरिया की अर्ज होगी, वॉमिटिंग होगी, प्रोफ्यूज वॉमिटिंग होगी, उस सब में क्या होगा? देयर मे बी अ reappearing of the hemorrhage from the suturing site. Now third one is the secondary hemorrhage occur after 7 to 14 days. It is because of the sludging of the wall of the vessel. For example, ये वेसल रफ्चर हुई थी, हमने यहाँ पे क्लोटिंग मैकेनिज्म हुई और यहाँ पे ड्रेसिंग भी कर दिया, लेकिन देयर में बी अ स्लजिंग, ये पूरा वॉल जो है वो स्लज आउट हो गया, वहां से निकल गया, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ द नेक्रोसिस, बिकॉज ऑफ द मैलिग्नेंसी. So that type of the hemorrhage may be occur within the 7 to 14 days. So first classification is according to the source, कहाँ से hemorrhage हो रहा है. Second is the according to time, at which time hemorrhages occur, right? प्राइमरी, सो जब भी इंजरी लगे और ऑपरेशन हो उसी टाइम पे जो हेमरेज होता है दैट वन इज द प्राइमरी. रिएक्शनरी माने कि पेशेंट रेस्टलेसनेस है, एक्सर्शन ज्यादा कर रहा है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, कपिंग है, तो क्या होगा? डिसलॉजमेंट ऑफ द क्लॉट हो जाएगा, सुचर मटेरियल ब्रेकडाउन हो जाएगा और स्लिपेज हो जाएगा, और उसकी वजह से हमको रीअपियरिंग ऑफ द हेमरेज देखने को मिलेगा. एंड लास्ट वन इज द सेकेंडरी, जो 7 से 14 दिन के बीच में हमको देखने को मिलेगा. इट इज अ साइन ऑफ सेकेंडरी हेमरेज, राइट? सेकेंडरी इन्फेक्शन, सॉरी, इट इज अ साइन ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन. चलो, थर्ड क्लासिफिकेशन इज बाय लोकेशन. एक्सटर्नल, दैट मीन्स विजिबल ब्लीडिंग. फॉर एग्जाम्पल कट में, लेस्ट्रेशन में, ये देखिए ये कट हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, लेस्ट्रेशन हो गया, तो ये एक्सटर्नल हेमरेज हमको देखने को मिलेगा. वाइल इंटरनल कंसील्ड हेमरेज, छुप के हमारे बॉडी में रहेगा, कंसील्ड हेमरेज. फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जीआई ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल पेप्टिक अल्सर में हमको देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में हमको देखने को मिलेगा, राइट? एंड इंट्राक्रेनियल, जो ब्रेन के अंदर हेमरेज होता है, दैट वन. ये देखिए ब्रेन के अंदर जो हेमरेज होता है, दैट हेमरेज में बी अ इंटरनल. सो बाय लोकेशन इट में बी एक्सटर्नल और इंटरनल. बॉडी के बाहर विजिबल है तो एक्सटर्नल है, इंटरनल माने कि जीआई ट्रैक्ट में है, लंग्स के अंदर है, ब्रेन के अंदर है, वो सारा इंटरनल. नाउ अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी, क्लास 1 less than 50% of blood volume, और इट मे बी अकर विद इन द मिनिमल सिम्टम्स, राइट? क्लास 2 माने कि 15 से 30% ऑफ लॉस, टोटल ब्लड अमाउंट के 15 से 30% ऑफ ब्लड लॉस हो गया, इसीलिए टैकीकार्डिया और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे. थर्ड वन इज द क्लास 3, जिसमें 30 to 40% ऑफ ब्लड लॉस हुआ है, और उसकी बिकॉज ऑफ दैट we may suffer from the hypotension, confusion, ये तो है ही है, टैकीकार्डिया है, एंजाइटी है, अब ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप डाउन होगा, मेंटल इंपेयरमेंट, कंफ्यूजन भी देखने को मिलेगा, राइट? नाउ क्लास 4. Class 4 is all about the more than 40% loss, more than 40% of loss, and it is a life-threatening condition and which may occur and it is may resulting into organ failure, right? तो fourth classification is according to severity. 15% से कम ब्लीडिंग हुआ है, 15 से 30%, 30 to 40% and more than 40%, right? चलो, कॉजेशन फर्स्ट इज द ट्रॉमेटिक, ब्लंट ट्रॉमा है, पेनिट्रेटिंग इंजरी है, फॉर एग्जांपल इन एक्सीडेंट और स्टैबिंग, नाइफ से स्टैबिंग हुआ है, ग्लास से स्टैबिंग हुआ है. Now fractures causing vessel damage because of the fracture also. The first one is the trauma. Any form of trauma may lead to bleeding. Second one is the pathological condition. For example, aneurysm, abnormal diameter, abnormal anatomy of blood vessels. For example, aortic aneurysm, cerebral aneurysm. Second one is the ulcers. For example, peptic ulcer. हमने अभी अभी देखा कि GI tract में internal bleeding होगा because of the peptic ulcer. And third one is the malignancy, तो ट्यूमर इरोजन में इरोजन इन ब्लड वेसल,
तो ब्लड वेसल में ऐसे रफ्चरिंग आएगा, यहाँ पे इरोजन आएगा तो हमको ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। चलो थर्ड कॉजेशन इज द आइट्रोजेनिक, माने कि सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस में पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग होता है। देन इन्वेसिव प्रोसीडर्स, फॉर एग्जांपल कैथेटराइजेशन के टाइम पे भी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है। नाउ द मेडिकल कंडीशन, फर्स्ट वन इज द कोएगुलेशन डिसऑर्डर। कोएगुलेशन डिसऑर्डर में आएगा हीमोफिलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, राइट। सेकेंड इज द एंटीकोएगुलेंट थेरेपी, फॉर एग्जांपल पेशेंट हिपेरिन ले रहा है, इकोस्प्रिन ले रहा है, तो उसमें भी ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। वो क्या करेगा, कोएगुलेट नहीं होने देगा ब्लड को, इसीलिए ब्लीडिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। देन हाइपरटेंशन लीडिंग टू इंट्राक्रेनियल हेमरेज। तो दिस आर द कॉजेशन, ट्रॉमेटिक कॉजेशन हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती है, आइट्रोजेनिक हो सकते हैं, एंड अदर मेडिकल कंडीशंस। नाउ द क्लिनिकल फीचर्स, जनरल फीचर्स में पैलरनेस, cold clammy skin, then tachycardia, increase the pulse rate, then weak pulse, then after hypotension blood pressure drop down होगा, dizziness, empty vein माने जब भी हमारा लिम्ब हैंगिंग पोजीशन में होगा तो हमको वेन इजीली देखने को मिलेगी, और ये वेन कैसी होगी, फिल विद द ब्लड। अभी जब आप तुरंत ही अपने हाथ या पैर को एलिवेट करोगे तो ये वेन इतनी विजिबल नहीं होगी जितनी हैंगिंग पोजीशन में थी, राइट। और ऐसे हैंगिंग पोजीशन में हमको वेन इजीली क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ द फिलिंग, बिकॉज ऑफ द रश ऑफ द ब्लड इनसाइड द वेन। बट अगर हेमरेज हुआ है, बहुत सारा ब्लड निकल गया है, तो हैंगिंग पोजीशन में भी हमको वेन एम्प्टी ही मिलेंगी। देयर इज नो एनी रश ऑफ ब्लड और फिलिंग ऑफ वेन विद द ब्लड, राइट। इसको बोलते हैं एम्प्टी वेन। एंड थर्ड वन इज द रेस्टलेसनेस। नाउ क्लासिक स्पेसिफिक सिम्टम्स क्लास वाइज। तो क्लास 1 जिसमें लेस देन 50% ब्लड लॉस हुआ है, उसमें मिनिमल सिम्टम्स हो गए। वाइटल्स माने कि बीपी हो गया, पल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, राइट, वो नॉर्मल देखने को मिलेगा। क्लास 2 जिसमें 15 to 30% जिसमें एंजाइटी, इंक्रीज हार्ट रेट, टेकिकार्डिया, टेकिफनिया, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिलेगा। नाउ 30 to 40% क्लास 3 जिसमें टेकिकार्डिया भी होगा, माने पल्स रेट इंक्रीज हो गए, ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन हो गया, मेंटल न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, एंड मोर देन 40% ब्लड लॉस होगा क्लास 4 में, जिसमें अनकॉन्शियसनेस, ऑर्गन फेलियर, एब्सेंट पल्स, एंड पेशेंट में कोलैप्स और डेथ में हैपन इन क्लास 4। नाउ साइट स्पेसिफिक फीचर्स। चलो एक्सटर्नल है तो विजिबल ब्लड लॉस होगा, स्वेलिंग होगा, पेन होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है तो हेमेटोमेसिस माने कि ब्लड इन वॉमिट, एंड मेलेना माने कि ब्लड विद इन स्टूल हमको देखने को मिलेगा। ऐसे ही इंट्राक्रेनियल है तो हेडेक, सीजर्स माने कि एपिलेप्टिकल एपिसोड हमको देखने को मिलेंगे, एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिएट हमको देखने को मिलेंगे। न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी और वी कैन से एबनॉर्मलिटी हमको देखने को मिलेगी। देन रिट्रोपेरिटोनियल तो बैक पेन हो सकता है, किडनी रीजन में एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हो सकता है। तो दिस इज द साइट वाइज कहाँ पे हेमरेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो क्लिनिकल फीचर में अगेन फर्स्ट इज द जनरल, जिसमें आपको याद रखना है कि बीपी ड्रॉप डाउन ही होगा, पल्स इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ हमको पेलरनेस देखने को मिलेंगी, कोल्ड क्लेमी एक्सट्रीमिटीज होगी, डिजीनेस माने कि वर्टाइगो जैसी फीलिंग हमको देखने को मिलेंगी। दिस आर द 3 डोमिनेंट सिम्टम्स और वी कैन से साइन इन अ केस ऑफ हेमरेज। देन क्लास वाइज एंड थर्ड वन इज द साइट वाइज। ये देखिए दिस वन इज द नोज ब्लीड जिसको हम बोलते हैं एपिस्टेक्सिस ऑल्सो, राइट, एपिस्टेक्सिस। सेकेंड वन इज द माउथ ब्लीड। Third one is the heavy bleeding from minor injury. It is the one type of hemorrhage again. Then easy bruising, then joint pain and swelling. तो यहाँ पे क्या होगा, हिमेटोमा फॉर्म होगा। ये सारे इंटरनल टाइप के ब्लीडिंग हो गए, ये हिमेटोमा, ये एपिस्टेक्सिस। नाउ मसल ब्लीड तो यहाँ पे भी हिमेटोमा फॉर्म होगा। ये कफिंग में ब्लड आएगा जिसको हम बोलते हैं हिमोप्टिसिस, राइट, हिमोप्टिसिस। एंड ब्लड इन स्टूल जिसको हम बोलते हैं मेलेना, राइट। So now the diagnostic approach, first one is the history, the trauma history, then medical history, whether patient is suffering from any medical conditions or not, or medications.
whether patient taking the aspirin or we can say the ecosprin. Ecosprin is the anticoagulant medicine which is responsible for the thinning of the blood, and hence there is no coagulation inside the blood vessels, and hence there is the profuse bleeding. So it is the anticoagulant medicine. तो आपको ये सब हिस्ट्री में पेशेंट को पूछना पड़ेगा कि ट्रॉमा की हिस्ट्री, कैसे ट्रॉमा हुआ, कब हुआ, राइट? Medical conditions, whether patient is suffering from hypertension, any other bleeding disorders or what, and third one is the medication. Then physical में vital sign, pulse, BP, respiratory rate. pulse क्या होगे? increase होगे, BP drop down होगा, respiratory rate increase होगे. inspection for external bleeding, आप एक्सटर्नल ब्लीडिंग है तो उस साइट को एग्जामिन कीजिए, और साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग है तो उसके साइन में आपको कभी कभार हिमोप्टिसिस भी देखने को मिलेगा, माने कि कफ में ब्लीडिंग आ रहा है. देन हिमेटेमेसिस, माने कि ब्लड में वॉमिटिंग आ रहा है. देन हिमेचूरिया, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड इन अ यूरिन. तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे. दिस इज द साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग. इसमें हम क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? ब्लड, फर्स्ट वन इज द ब्लड टेस्ट, जिसमें हीमोग्लोबिन, हिमोक्रेट, प्लेटलेट काउंट, कोएगुलेशन प्रोफाइल, क्योंकि हमको रूल आउट करना है डिफरेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, purpura, right? Second one is the imaging, USG for trauma, CT scan from intracranial and abdominal bleeding. And third one is the endoscopy, हम करवाएंगे GI tract के bleeding के लिए, right? ये देखिए, this one is the hemorrhage. This white patchy appearance is the hemorrhage inside the lung. ये इमेज है, लंग के अंदर ऐसे हमको हेमरेजेस देखने को मिलेंगे. अगेन दिस इज द पेप्टिक अल्सर, जिसमें हमको एंडोस्कोपी में ये फाइंडिंग मिलेंगे. अगेन दिस इज द ब्रेन इंट्राक्रेनियल हेमरेज. ये देखिए एरिया ऑफ हेमरेज, ये व्हाइट पैची जो है दैट वन इज द एरिया ऑफ हेमरेज. सो ऐसे ऐसे डिफरेंट फाइंडिंग्स में हमको हेमरेज देखने को मिलेगा. Now management. Management consists two parts. First and foremost, we have to stop the blood or a bleeding, and second one is to restore the blood volume by blood transfusion. जितना भी blood निकल गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा, ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा. तो फर्स्ट टू स्टॉप द ब्लड लॉस, जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है, अगर हेमरेज प्रेजेंट है तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम क्या होना चाहिए? सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करना है. तो उसके लिए पेशेंट को रेस्ट, सेकेंड वन इज द प्रेशर एंड पैकेजिंग ऑफ द साइट ऑफ ब्लीडिंग, एंड थर्ड वन इज बाय ऑपरेटिंग मेजरमेंट, राइट? एंड सेकेंड ऑप्शन क्या बचेगा? जो भी ब्लड निकल गया है उसका ट्रांसफ्यूजन करना, राइट? सो फर्स्ट रेस्ट, proper rest after injury helps in wound healing process. Restlessness may occur because of anxiety, because of pain and because of sleeplessness, right? Patient के अंदर restlessness होगी because of the anxiety, because of the pain and because of the sleeplessness. तो सबसे पहले हम देंगे sedatives, यानी कि small dose of morphine के जिससे patient sedatives type of the medicine, that one is the morphine, जिससे पेशेंट को अच्छी नींद आएगी और रेस्टलेसनेस जो है वो पेशेंट के अंदर नहीं रहेगी. सेकेंड वन इज द एनाल्जेसिक ग्रुप ऑफ द मेडिसिन which is again helpful in the pain. And third important point is the position of the patient. In a head and neck surgery, anti-Trendelenburg position. Head and neck की सर्जरी है तो फर्स्ट वन इज दिस anti-Trendelenburg position, जिसमें हेड और नेक है उसको हम अप रखेंगे. बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी में जाना होगा और इसीलिए ब्लीडिंग कम होगा. While in a lower limb surgery, we prefer the Trendelenburg position. ये देखिए लोअर लिम्ब की सर्जरी है तो हम पैर वाला जो हिस्सा है, एरिया है, उसको एलिवेट करेंगे तो अगेन ग्रेविटी के अगेंस्ट में ब्लड को जाके एट द साइट ऑफ इंजरी ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट? तो दिस वन इज द एंटी ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन, दिस इज ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन. ये जो है एंटी ट्रेडलेन हेड एंड नेक की सर्जरी में, और ये लोअर लिम्ब के एरिया की सर्जरी में, जिसको बोलते हैं ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन. चलो सेकेंड वन इज द पैकेजिंग एंड प्रेशर.
ये देखिए हम ये गॉस पीस से क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, ये ड्रेसिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, और ये बैंडेज अप्लाई करके सारा लोअर लिम्ब का ब्लड जो है वो अपर बॉडी के साइड हम भेज रहे हैं, राइट। This is mainly a first aid treatment. Sterile piece of gauze and the bandage may be used as the pressure bandage to reduce the bleeding from the external wound. हमको भी घर में कभी कभार जो छोटा कट लग जाता है, इंसिजन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको प्रेशराइज करते हैं, पैक करते हैं और क्लॉथ की मदद से उसको प्रेशर कर देते हैं और पैकेज कर देते हैं, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप टू स्टॉप द ब्लीडिंग. Second one is, if sterile gauze piece and the bandage is not available at home, then you may use the clean linen cloth may be used as the bandage to reduce the bleeding from the wound. हम ऐसा ही करते हैं, हमारे घर में जब भी छोटी मोटी इंजरीज होती है, कट लग जाता है, तो तुरंत ही हम क्या करते हैं, एक क्लीन क्लॉथ लेके उसको टाइट बांधने की कोशिश करते हैं, टाइड अप करने की कोशिश करते हैं, और उसकी मदद से क्या होगा, प्रेशराइजेशन होगा, पैकेजिंग होगा और ब्लीडिंग कम होगा. The gauze piece are used as the package. ऐसे पैकेजिंग किया जाता है, राइट. चलो, then after the operative measurements. अगर रेस्ट किया तब भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ, सेकेंड क्या किया, पैकेजिंग एंड प्रेशर, तब भी ब्लीडिंग कम नहीं हुआ, तो लास्ट वन इज दी ऑपरेटिव मेजरमेंट्स, जिसमें लाइगेशन ऑफ ब्लड वेसल, जिसमें क्या करेंगे, ब्लड वेसल को लाइगेट करेंगे, देन जिलेटिन एंड ऑक्सीजन स्पॉन्ज का यूज करेंगे, राइट. ऑक्सी सेल जो स्पॉन्ज होता है उसका यूज करेंगे. वो ऐसे फाइबर नेटवर्क जो है वो एट द साइट ऑफ इंजरी प्रोवाइड करता है, और ऐसे नेटवर्क में इजीली प्लेटलेट आके चिपक जाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट आके चिपक जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्लोट फॉर्म हो जाएगा, राइट. नाउ थर्ड वन इज द एड्रेनालिन स्पॉन्ज, बिकॉज एड्रेनालिन इज द वाजोकंस्ट्रिक्टर. वो क्या करेगा, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसकी बिकॉज ऑफ दैट ब्लीडिंग जो है वो कम होगा. देन डायथर्मी माने कि हम वो दैट पर्टिकुलर एरिया जो रप्चर ऑफ ब्लड वेसल है और ब्लड जो जहां से ब्लीडिंग हो रहा है उसको क्या करेंगे, रेडिएशन की मदद से, एक्स्ट्रा हीट, एक्सेसिव हीट की मदद से उसको बंद कर देंगे, राइट. नाउ क्लिपिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बाय हीमोस्टेट फॉर सेट. ऐसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, तो इस साइड भी हीमोस्टेट, इस साइड भी हीमोस्टेट क्लिप कर देंगे, तो उसकी मदद से क्या होगा, अब फर्दर ब्लीडिंग यहाँ से नहीं हो पाएगा. लेट्स सी इनटू द फर्दर स्लाइड. देखिए ये ब्लीडिंग वेसल्स है, तो हमने first is that and second is this, right. First is हेमोस्टेट एंड दिस इज अगेन सेकेंड हेमोस्टेट. तो हमने क्या किया, आर्टरी को दोनों तरफ से क्लिप कर दिया, ये देखिए आर्टरी को दोनों तरफ से क्लिप कर दिया. दिस वन इज द डायथर्मी, जिसमें यहाँ से हम एक्सेसिव हीट एरिया को देंगे, जो साइट ऑफ इंजरी है उसको देंगे, और उसकी मदद से वो बंद हो जाएगा. देन दिस इज द लाइगेशन ऑफ आर्टरी. ऐसे क्या करेंगे, सुचर लेके फाइनली उसको लाइगेट कर देंगे. ये देखिए पहले दोनों तरफ से क्लिप करना है विद द हेल्प ऑफ हीमोस्टेट, तो यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगा, एंड फाइनली उसको हम हीमोस्टेट करेंगे, राइट. फाइनली उसको क्या करेंगे, सुचर करके हीमोस्टेट माने कि स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग. So I hope you found this video helpful. Thank you so much. Please like, share and subscribe the White Coat Academy and comment में जरूर बताइए कि आप next कौन सा lecture study करना चाहेंगे. Thank you.